Hello everyone. Today we are going to study about the equipments which are used for the drying process. So generally, as these equipments are used to carry out the drying step, they are referred as the dryers. So today we are going to start with the dryers. First dryer is nothing but the spray dryer. Okay. So generally, on what basis this spray dryer works? So it is based on the principle, likewise the cyclone separator. Okay, so what happens in cyclone separator? First, the materials are cut down into small particles. They are break down into smaller ones, and after that they are separated. Okay, so likewise that here the materials are break down into the small particles, and as the materials is atomized. Okay, so here atomizer is present, which is responsible for the breakdown of the fluid, okay, into fine droplets. Means what is happening here, the size of the material, size of the fluid is reduced. Okay, so for this reduction of the size, the atomizer is present in the spray dryer, and its principle is wholly solely dependent on the atomizer. Okay, so what is the job of atomizer? Atomizer is responsible for breaking down of the particles, breaking down of the material into the smaller pieces. Okay, up what will happen after breaking down the material into smaller pieces? Due to reduction in the particle size, the surface area of the फाइन ड्रॉपलेट्स विल बी एनहांस. ओके, मीन्स क्या कि पार्टिकल साइज कम होने की वजह से उन पार्टिकल्स का सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा. मतलब क्या, द मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर एक्सपोजर टू द पर्टिकुलर टेम्परेचर या हीटिंग, या जिस सोर्स से हम ड्राइंग कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा वो पार्टिकल का, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है. ओके, मीन्स एज द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, rate of drying is also increased. Okay, so thus the drying will be efficient. So this is the मेन प्रिंसिपल ऑफ योर स्प्रे ड्रायर. कि क्या होता है स्प्रे ड्रायर में, सीधा सीधा एक ऑटोमाइजर प्रेजेंट होता है. ऑटोमाइजर मतलब आप इतना ही ख्याल में रखो कि जो फ्लूइड को, जो मटेरियल को आपको ड्राई करना है, ठीक है, अब कौन सा मटेरियल को आपको ड्राई करना है, कोई आपका सॉलिड वेट होगा, कोई आपका पार्टिकल्स होगा, तो उसके साथ आइदर लिक्विड या कोई तो फ्लूइड होगा, उसमें मॉइस्चर होगा, तो उसमें से आपको वो मॉइस्चर इवोपरेट करना है बोलो, वेपर्स के फॉर्म में निकालना है बोलो, या सीधा सीधा उसको ड्राई करना है. ठीक है, तो ये ड्राइंग कैसे अचीव होगी कि स्प्रे ड्रायर में एक ऑटोमाइजर लगा होगा. उस ऑटोमाइजर का रोल क्या है, इट विल कन्वर्ट दैट फ्लूइड जिसको आपको ड्राई करना है इनटू द फाइन ड्रॉपलेट्स. means what is happening here, the size or particle size of such fluid is reduced into the fine droplets, and as the particle size is reduced into the fine droplets, that particular droplets will be more or will be better into its surface area, and as the surface area is enhanced of the particle size, the rate of drying is also enhanced and the drying will be efficient. Okay, so here the fluid to be dried is atomized into fine droplets. Okay, then which are thrown radially into the moving stream of hot gas. ठीक है, मतलब यहाँ पे source of heat क्या है, source of drying क्या है, कि here the hot gas is प्रोवाइडेड इनटू द ड्रायर. ओके, तो एक बार फ्लूइड का कन्वर्जन फाइन ड्रॉपलेट्स में होने के बाद वो पर्टिकुलर फाइन ड्रॉपलेट्स विल बी थ्रोन रेडियली. रेडियली मीन्स क्या, कि अरेंज्ड इन अ लाइन फ्रॉम अ कॉमन सेंटर. रेडियल मीन्स क्या, जैसा कि आपका रेडियस होता है. ठीक है, मीन्स क्या, एक कॉमन सेंटर होगा उसका. ठीक है, उस कॉमन सेंटर से उनको ऐसे लाइन में अरेंज करेंगे कि जहाँ से उसका सेंटर कॉमन हो. ओके, एंड किस में उसको थ्रो करेंगे, रेडियली इनटू द मूविंग स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस. मीन्स हियर हॉट गैस विल बी द सोर्स ऑफ योर ड्राइंग, जहाँ से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा आपके फाइन ड्रॉपलेट्स का. ओके, देन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉपलेट्स is immediately increased and fine droplets get dried in the form of spherical particles. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, तो उसकी स्प्रेइंग हुई है, उस पर क्या होगा, उसका सामना किससे होगा, हॉट गैस से. ठीक है, तो हॉट गैस में उसका कन्वर्जन होने के बाद दैट फाइन ड्रॉपलेट्स विल ड्राइड and will get in the form of the spherical particles. Okay, so this is the principle of your spray dryer. Okay, then this is how it looks. Means it consists of
what is happening here? Here this is the arrangement. One cylindrical base body is present with the conical base. Okay, it consists of the two inlets, for one is for the hot air and second is for the liquid feed. यहाँ पे वो mix भी हो जाता है, ठीक है. Now here the atomizer is present which is very important for breaking down the fluid into the fine droplets. यहाँ पे atomizer क्या करेगा, fine droplets में उसको convert करेगा. उसके बाद radially from one center it will throw the particular fine droplets into this system where the hot air is present. Okay, so this is the drying chamber. Okay, तो यहाँ पे ड्राइंग चेम्बर में वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने के बाद यहाँ पे बॉटम तक जाने से पहले द ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, द ड्राइंग प्रोसीजर टेक्स प्लेस, क्योंकि ये क्या है आपका ड्राइंग चेम्बर. ओके, सो दिस ड्राइंग चेम्बर इज कनेक्टेड विद द साइक्लोन सेपरेटर. व्हाई इट इज कनेक्टेड विद द साइक्लोन सेपरेटर? बिकॉज in cyclone separator or from cyclone separator we can achieve the desired size particles, कि जैसे साइज के हमें चाहिए. और इसके पहले हमने साइक्लोन सेपरेटर पढ़ा है कि जो साइज का हमें पार्टिकल चाहिए उस साइज का हम पार्टिकल इस साइक्लोन सेपरेटर से अचीव कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर spray dryer. It consists of two inlets. Okay, one is for the hot air, another for is the liquid feed. Here the both are mixed and the atomizer is responsible for breaking down the particles or breaking down the material into or fluid into the fine droplets. Okay, if the atomizer does its job, okay, means क्या, ब्रेक डाउन करेगा मटेरियल को ड्रॉपलेट्स में. उसके बाद इट विल थ्रो दैट पर्टिकुलर ड्रॉपलेट फाइन ड्रॉपलेट्स इनटू दिस सिस्टम, मीन्स इनटू द ड्राइंग चेम्बर. ओके, देन दैट ड्रॉपलेट्स कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द हॉट गैस and the temperature is increased. As the temperature is increased, the fine droplets get converted into the spherical particles. Okay, so these spherical particles moves into the cyclone separator and get separated according to their sizes. Okay, and here from the bottom of the cyclone separator the the dried particles are collected, means dry product. Okay, so this is the vent for vapor. So this is the simple construction of your spray dryer. Now construction, that is it consists of a large cylindrical body. Okay, drying chamber with a short conical bottom made of a stainless steel. Okay, means जो हमने ये पढ़ा, it consists of a large cylindrical body, ठीक है, which is referred as the drying chamber and it has the conical base and it is made up of the stainless steel. Okay, then diameter of 2.5 to 9 meters and height of 25 meters or more. ठीक है, कि ये दिख रहा है हमें छोटा सा, बट इंडस्ट्री के लेवल पे ये बहुत बल्क में या बहुत लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिसका डायमीटर क्या हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 टू 9 मीटर्स एंड हाइट इज अप टू 25 मीटर्स और मोर. ठीक है, तो इतना बड़ा होता है वो एज पर योर डिज़ायर, कि जितना मटेरियल्स को आपको जितने क्वांटिटी में ड्राई करना है उसके हिसाब से आप आपके स्प्रे ड्रायर का साइज रखो. ओके, सो एन इनलेट और हॉट एयर इज प्लेस्ड इन द रूफ ऑफ द चेम्बर एंड अनदर इनलेट कैरिंग द स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर इज सेट इन द रूफ ऑफ द चेम्बर. रूफ मतलब छत. ओके, तो ये टॉप पे क्या क्या प्रेजेंट है, एक इनलेट हॉट एयर के लिए, लिक्विड फीड के लिए एंड वन atomizer is set in the top roof of the cylindrical chamber. Okay, so spray disc atomizer is about 300 mm in diameter. suppose MCQ में अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन वाइज अगर जाए तो ऑटोमाइजर का आपको पूछ सकते हैं स्पेसिफिकेशन. ओके, सो स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर विच इज रिस्पॉन्सिबल स्प्रेइंग, क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा और उसको स्प्रे कर देगा फाइन ड्रॉपलेट्स को रेडियली आपके ड्राइंग चेम्बर में. ओके, so is about 300 mm in diameter and rotates at speed of 3 to 50,000 rpm. देखिए उसका स्पीड कितना है. ओके, 3000 to 50,000 रोटेशंस पर मिनट कर रहा है, वो रिवोल्यूशन पर मिनट्स दे रहा है आपको. सो कितना हाई स्पीड होगा, उसका वेलोसिटी कितना ज़्यादा होगा और कितना इफिशिएंट होगा वो फाइन ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करने में, साइज को ब्रेक डाउन करने में. ओके, सो बॉटम ऑफ ड्रायर इज कनेक्टेड टू अ साइक्लोन सेपरेटर. ओके, तो उस ड्रायर का, आपके स्प्रे ड्रायर का, आपका कोनिकल बेस का बॉटम किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू द साइक्लोन सेपरेटर एंड दैट साइक्लोन सेपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्या होगा आपको,
to give you the desired size of dry product. Okay, so now next is the working, very simple working procedure is there. Okay, क्या होता है 3 steps में the your spray dryer works. Okay, first is the atomization, second is the drying of your droplets, and third is nothing but the recovery of the fine पार्टिकल्स. ठीक है, पहले क्या होगा ऑटोमाइजेशन. ऑटोमाइजेशन में सिंपल याद रखिए आप कि क्या हो रहा है कि फ्लूइड का आपको जिसको ड्राई करना है, जिसका आप जो आपका मटेरियल है, जो आपका सैंपल है जिसको आपको ड्राई करना है सीधा सीधा. ओके, सो दैट सैंपल is break down into fine particles, fine droplets. So that process मतलब ऑटोमाइजेशन या ऑटोमाइजर का सबसे बड़ा क्या काम है आपका इसमें कि जो फ्लूइड की आप एंट्री दोगे इसमें किसमें स्प्रे ड्रायर में, सो दैट फ्लूइड शुड बी कट डाउन और ब्रेक डाउन इनटू द फाइन particles. Okay, means first step क्या है यहाँ पे ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड. सो these ऑटोमाइजर आर is responsible for cutting down or for the breakdown of that material which is to be dried into the smaller particles or into the fine droplets. Okay, means यहाँ पे first step क्या हो गई आपकी automation of liquid. Okay, so here the feed is introduced through the atomizer either by the gravity or by using the suitable pump to form the fine droplets. Okay, मतलब यहाँ पे कि introduction of feed is via the atomizer into the system, then either gravity, because of gravity, yeah, either by using the suitable pump, some external pressure is applied for the introduction of feed into the atomizer. Okay, so the properties of final product depends on the droplet form. ठीक है, मतलब क्या कि कौन से फॉर्म का कौन से साइज का ड्रॉपलेट्स ऑटोमाइजर ने क्रिएट किया है, तो उस साइज पे उस फैक्ट पे क्या बेस्ड है आपका here on that thing the properties of the final products are is based. Okay, मतलब क्या properties of final product क्या based है उस पे कि समझो वो प्रोडक्ट कितना टाइम लेगा. चलो ये समझ लेंगे आप कि वो प्रोडक्ट कितना टाइम लेगा आपका ड्राई होने के लिए. सपोज कि वो फाइन पार्टिकल्स में अगर उसने ब्रेक डाउन किया है, आपको फाइन ड्रॉपलेट्स उसने ला कर दिए, तो फाइन ड्रॉपलेट्स मतलब साइज कम, पार्टिकल साइज कम मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा. सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब क्या, उसका एक्सपोजर टू द हॉट गैस इज मोर, सो अल्टीमेटली द ड्राइंग रेट विल बी फास्टर. ओके, सो it is depend on the property of your final product. Okay, so rate of feed adjusted in such a way that droplets should be completely dried before reaching to the walls of the drying chamber. ठीक है, ऐसा rate of feed को adjust किया है, मतलब क्या कि उसको वॉल तक आपके सिलेंड्रिकल चेम्बर के एंड तक जाने तक वो पूरा completely ड्राई होना चाहिए. ओके, सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ योर रेट ऑफ फीड, मतलब कितने स्पीड से आपको आपके फीड की एंट्री देनी है वो सिस्टम में. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स. मतलब क्या, ऑटोमाइजेशन तो हो गया, आपके पार्टिकल्स आपको फाइन ड्रॉपलेट्स में मिल गए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपको फाइन ड्रॉपलेट्स में आपके पार्टिकल मिले हैं उन पार्टिकल्स का, उन ड्रॉपलेट्स का आपको क्या करना है, अभी ड्राइंग अचीव करना है. ओके, सो हाउ surface of the liquid droplets is dried immediately to form a tough shell. Okay, मतलब क्या होगा कि जो आपके फाइन ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है मॉइस्चर के वजह से, स्टार्टिंग में क्या होगा कि दैट सरफेस ऑफ द लिक्विड में प्रेजेंट है, आपके ड्रॉपलेट्स फ्लूइड में प्रेजेंट है ना फाइन ड्रॉपलेट्स, तो उसका सरफेस आपका क्या होगा, इट विल बी ड्राइड इमीडिएटली, और उसका ड्राई होने के बाद क्या होगा, अ टफ शेल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ योर लिक्विड droplet. Okay, so heat transfer from outside to inside takes place at the rate greater than the liquid diffusion rate. Okay, means यहाँ पे क्या होगा कि the rate of heat transfer is more than the rate of liquid diffusion. लिक्विड को डिफ्यूज होने के लिए उसका जितना रेट है उससे ज़्यादा सिस्टम में आपके ड्राइंग चेम्बर में हीट ट्रांसफ़र का रेट होगा. मतलब क्या होगा कि ड्राइंग rate is also enhanced. Okay, so as the result, inside the heat inside mounts up which allow the liquid to evaporate, means ultimately drying will be reached. Okay, so here this leads to increase in the internal pressure which causes the droplets to swell. इससे क्या होगा कि the internal pressure is generated due to which the droplets will swell and the shell will become more thick.
Okay, the shell thickness decreases where the permeability of vapor increases. मीन्स अल्टीमेटली आपका क्या होगा कि शेल का थिकनेस, जो आपका टफ शेल बना है लिक्विड ड्रॉपलेट के ऊपर, वो टफ शेल का थिकनेस कम होगा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट उसमें से कम होगा, एंड परमेबिलिटी ऑफ द वेपर विल इंक्रीज. ओके, सो दिस इज हाउ द ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इज अचीव्ड. पहले क्या हो रहा है, ऑटोमाइजेशन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑटोमाइजेशन से जो हमें फाइन ड्रॉपलेट्स मिले, उन फाइन ड्रॉपलेट्स का हॉट एयर से, हॉट गैस से सामना होगा. सो दैट हॉट गैस विल फॉर्म अ टफ शेल ऑन द लिक्विड ड्रॉप, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड will occur. Okay, so the rate of that heat transfer is more as compared to the liquid diffusion rate. Okay, thus what will happen, the liquid tends to evaporate. Okay, and as the evaporation takes place here, the internal pressure is increased, due to which the liquid or the droplet starts to swell. Okay, so ultimately the thickness of the shell will decrease and the permeability for the vapor pressure will, for the vapors will increase. मीन्स क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे टेंड्स टू ड्राइंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिकवरी ऑफ योर ड्राइड प्रोडक्ट. कि चलो अब प्रोडक्ट ड्राई हो गया है, बट हाउ टू रिकवर. ठीक है, मतलब ऑटोमाइजर ने अपना काम कर दिया है, उसके बाद ड्राइंग चेम्बर में प्रोडक्ट आपका ड्राई हो गया है. ओके, तो हाउ टू recover that dried product. Okay, so centrifugal force of the atomizer drives the droplet to form in the helical path. Okay, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑटोमाइजर क्या क्या करेगा, पहले फाइन ड्रॉपलेट्स में उसको कट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, इट विल थ्रो द पार्टिकल्स और फाइन ड्रॉपलेट्स रेडियली. ओके, रेडियली फॉर further drying and its recovery. Okay, so this centrifugal force of atomizer will drive the droplet to follow the helical path. एक helical path फॉलो करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करेगा आपका ऑटोमाइजर. ओके, सो पार्टिकल्स आर ड्राइड ड्यूरिंग दिस जर्नी एंड फाइनली फॉल एट द कोनिकल बॉटम. उसके बाद क्या होगा कि हेलिकल पाथ फॉलो करते करते, जो आपने देखा है ना उसका ऑटोमाइजर का, ये देखिए दिस पाथ. ओके, मतलब क्या हो रहा है, ये पाथ में घूमते 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 वो ड्राई हो जाएगा. जो ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स हमने प्रोसीजर पढ़ा कि शेल आपका टफ शेल फॉर्म करेगा, उसके बाद वो टफ शेल को लास्ट में थिकनेस कम होगा, वेपर का एंट्री परमेबिलिटी इंक्रीज होगा, और वो ऐसा हेलिकल फॉर्म में घूमेगा, और घूमने के बाद बॉटम में बाहर चला जाएगा बॉटम से. ओके, सो ऑल दिस प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड इन फ्यू सेकेंड्स. हमें पढ़ने में लग रहा है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट इट इज़ नॉट. इट इज़ कंप्लीटेड इन फ्यू सेकेंड्स एंड द पार्टिकल साइज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रेंजेस फ्रॉम 2 to 500 mm. ओके, सो दिस इज द साइज वेरिएशन विच कैन बी अचीव्ड बाय द स्प्रे ड्रायर. ठीक है, नाउ एडवांटेजेस, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ड्राइंग कंप्लीट विद इन 3 to 300 seconds. ओके, डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी ऑफ योर मटेरियल एंड डिजायर्ड साइज रेंज. ओके, लेबर कॉस्ट इज लो, क्योंकि सब किसको करना है, आपके ड्रायर को करना है. सिर्फ आपको लेबर कब लगेगा, टू लोड एंड टू कलेक्ट योर सैंपल और फीड मटेरियल. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड कंट्रोलेबल साइज कैन बी ऑब्टेन्ड. वाई, बिकॉज ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर. ठीक है, कि साइक्लोन सेपरेटर प्रेजेंट है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म साइज कैन बी अचीव्ड. ओके, फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर्म प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर. ठीक है, कि फाइन ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होगा, मास ट्रांसफर भी होगा, मतलब उसमें का मॉइस्चर भी जाएगा, और हीट ट्रांसफर भी होगा उसके लिए. क्यों, बिकॉज इट विल प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया. ओके, प्रोडक्ट शोज द एक्सीलेंट सोल्यूबिलिटी. उसका क्या होगा कि प्रोडक्ट का क्या बोला हमने स्टार्टिंग में ही, प्रॉपर्टीज भी एनहांस होगी. सो इट विल शो द एक्सीलेंट सोल्यूबिलिटी. वाई, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज लेस एंड सरफेस एरिया इज मोर. मीन्स जो भी एटमॉस्फेयर में आप रखोगे उसको, तो वो क्या ज़्यादा एक्सपोज होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है. ओके, आइदर सोल्यूशन or suspensions or a thin paste can be dried in one step to get the final product ready for the पैकेजिंग. सो दिस इज द एडवांटेजेस कि इसमें से सोल्यूशन भी कर सकते हो आप, सस्पेंशन भी कर सकते हो, और थीन पेस्ट को भी आप ड्राई कर सकते हो बाय यूजिंग द स्प्रे ड्रायर. ओके, देन डिसएडवांटेजेस, इट इज़ वेरी बल्की एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव मशीनरी इक्विपमेंट आपका ड्राइंग का. ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है. देन सच ह्यूज इक्विपमेंट इज नॉट ऑलवेज ईजी टू
ऑपरेट, यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए आपको वो इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए. ओके, द थर्मल इफिशियंसी इज लो एज मच हीट इज लॉस्ट इन द डिस्चार्ज gases. Okay, so here thermal efficiency low in case of the spray dryer. Okay, so the uses of spray dryers, okay, so which are used compulsorily. ठीक है, यहाँ पे इसका कंपल्सन होता है अगर आपको ड्राइंग अचीव करनी है. इफ द प्रोडक्ट इज बेटर फॉर्म देन दैट ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर ड्रायर. ठीक है, कि आपको दूसरे ड्रायर से ज़्यादा बेटर फॉर्म का प्रोडक्ट अचीव करना है. द क्वांटिटी टू बी ड्राइड इज लार्ज, क्योंकि इसका क्या बोला मैंने कि स्टार्टिंग क्या कि आप 25 मीटर्स हाइट तक ले सकते हो उसको, फिर आप उसकी साइज अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, डिजायर्ड आपको जितना प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए. ओके, द प्रोडक्ट इज थर्मोलेबाइल, हाइग्रोस्कोपिक और अंडरगो द केमिकल डिकम्पोजिशन. तो यहाँ पे आपको स्प्रे ड्रायर ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर प्रोडक्ट थर्मोलेबाइल है तो स्प्रे ड्रायर उसके लिए अच्छा रहेगा, उसको ड्राई करने के लिए. हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स के लिए भी, और कोई प्रोडक्ट का अगर केमिकल डिग्रेडेशन होता होगा, सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो द स्प्रे ड्रायर इज efficient. Okay, so this is about the spray dryer.